اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو نکاح کرے وہ مجھ سے ہے اور جو نکاح سے انکار کر دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جو شادی کے موقع پر اس پروگرام کو رچایا گیا ہے، آج شادی کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس شادی کے رسم کو کوئی ڈی جے بجا کر کے اس کے شکل میں ادا کرتا ہے، کوئی نوٹنکیوں کا ناچ کر کے اس کے شکل میں ادا کرتا ہے، اور اس رشتے کو کوئی للی گھوڑی بنا کر کے اس کے شکل میں ادا کرتا ہے، کوئی پردہ چلا کر کے اس کے شکل میں ادا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے قاری ارشاد صاحب یہ للی گھوڑی دیہات میں بنتا ہے، ذرا ہاں جانیے، ہاں للی جسے کہتے ہیں للی نے سب لیل لیا اب کچھ باقی نہ چھوڑا۔ یہ بھی آپ جانتے ہوں گے جب للی کا وقت رہتا ہے نا تو اس میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اسی کے پیچھے زمانہ دوڑنے لگتا ہے۔ حضرات اس شادی کے پروگرام کو اپنے اپنے انداز میں لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو انداز حضرت نے سوچا ہے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ میرے اسلاف کا طریقہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر، کسی بھی خوشحالی کے موقع پر میرے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ میلاد مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اتنا نڈر ہو گئے ہیں کہ نہ ہمیں حساب و کتاب کا ڈر ہے، نہ ہمیں کچھ فضول خرچی کا خوف ہے۔ اے میرے دوستوں، اے میرے چتری گاؤں کے مسلمانوں، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے ہی گھر پر بہن بیٹیاں ہیں؟ کیا ہمارے ہی بچوں کی شادی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ہی بہن بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے کہ ہم ان شادیوں کو بغیر ڈی جے، بغیر ناچ، بغیر رنڈیوں کے نہیں کرتے؟ یاد رکھو دوستو، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ جب تمہاری بارات نکلے اور کسی دوسرے قوم والے کی جب نظر پڑے تو اپنے دل میں احساس کرے کہ یہ ایک مسلمان کی بارات جا رہی ہے، ایک مسلمان کی بارات جا رہی ہے۔ حضرات آج یہ سمجھیں کہ ہم بہت پیسے والے ہیں، بڑے ثروت والے ہیں، بڑے نام والے ہیں، تو یاد رکھو دوستو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم اتنا نڈر ہیں کہ نہ ہمیں کسی چیز کا خوف ہے، نہ قبر کا خوف، نہ حساب و کتاب کا خوف ہے۔ حضرات آج جن بہن بیٹیوں کی ہم شادی کرتے ہیں، جن بچوں کی ہم شادی میں خوشی مناتے ہیں، کیا میں پوچھتا ہوں ہمارے ہی گھر پر بہن بیٹیاں ہیں؟ ارے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت حضور خاتون جنت کے قدموں پر قربان ہے۔ حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اپنی بچی کی شادی ایسے ہی کیا تھا جیسے کہ ہم کرتے ہیں؟ حضرات آؤ میں اسی روئے زمین پر، اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی شادی بیان کرتا ہوں جس کے شادی پر تمام اولیاء اکرام کی بیٹیاں ناز کر رہی ہیں، جس کے شادی پر تمام انبیاء اکرام کی بیٹیاں ناز کر رہی ہیں، جس کے شادی پر تمام اولیاء اکرام کی بیٹیاں ناز کر رہی ہیں، جس کے شادی پر تمام انبیاء اکرام کی بیویاں ناز کر رہی ہیں، ارے یہاں تک جس کے شادی پر قرآن بھی فخر کر رہا ہے۔ حضرات آپ پوچھیں گے حضرت وہ کہاں کی لڑکی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے؟ تو اے میرے دوستو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرات وہ حسنین کریمین کی ماں ہے، حضرت مولا علی کی بیوی ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے، جن کی شادی پر اللہ رب العزت نے پوری جنت کو سجا دیا تھا، اور یہ جنت ہے آج سب کے سب حضرت فاطمہ کے شکل میں دلہن بن جاؤ، کیونکہ مدینہ کی سرزمین پر میرے نبی کی بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا انور علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سب کے سب دلہن بن جاؤ کیونکہ مدینہ کی سرزمین پر میرے نبی کی بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے۔ حضرات پتا چلا جس دن حضرت خاتون جنت کی شادی ہوئی تھی، حضرات اس دن اللہ رب العزت نے پورے جنت کو سجا دیا تھا، تمام جنت کی حور و غلمان کو حکم دے دیا تھا کہ آج سب کے سب دلہن کی شکل اختیار کر لو اور پوری جنت کو سجا دیا جائے، کیونکہ آج مدینہ کی سرزمین پر میرے محبوب کی بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے۔ حضرات آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کسی کروڑ پتی کے ساتھ میں کیا تھا، کسی بہت بڑے بلڈر کے ساتھ میں کیا تھا، بہت بڑے ثروت والے کے پاس میں کیا تھا؟ نہیں دوستو، میرے نبی نے اپنے بچی کی شادی کسی کروڑ پتی کے ساتھ میں نہیں کیا تھا، بلکہ میرے آقا نے اپنی بیٹی حضور خاتون جنت کو، اپنے لگتے جگر کو ایسے غریب علی کے ساتھ میں کیا تھا جس کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ حضرات آپ کیا سمجھتے
चाहते हैं कि नबी के पास रिश्ते नहीं आ रहे थे, आप अपने दिल में फैसला कर रहे हैं कि अगर रिश्ते आते तो मेरे आका इतने गरीब अली के साथ रिश्ता क्यों करते। अरे मेरे दोस्तों, अगर रिश्ते आने की बात है तो आओ मैं चंद बातें कर लेता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अरे नबी के बारगाह में ऐसे ऐसे रिश्ते आए हैं कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि एक मर्तबा हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपकी बेटी हुजूर खातूने जन्नत का हाथ मुझ नाचीज के हाथ में आ जाए तो मैं अपने आप को मुकद्दर का धनी समझूंगा। मेरे आका ने कोई जवाब न दिया। हजरत उमर फारूक आजम पहुंचते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी बेटी का हाथ मुझ नाचीज के हाथ में आ जाए तो बड़ा अच्छा होता। मेरे आका ने हाँ ना में जवाब न दिया। फिर एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी आते हैं, तमाम बड़े बड़े सहाबा कराम रिश्ता लेकर मेरे नबी की बारगाह में आए हैं, लेकिन मेरे आका ने ना हाँ कहा है और ना ही ना में जवाब दिया है। हजरात, तमाम बड़े बड़े सहाबा कराम रिश्ता लेकर नबी की बारगाह में आए थे। अरे वो सदाकत के बादशाह हजरत सिद्दीक अकबर है, अदालत के बादशाह हजरत फारूक आजम है, जो बड़े बड़े सहाबा नबी की बारगाह में अपने जानूए अदब बैठे हुए हैं हजरत फातिमा ज़हरा की रिश्ते के लिए। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, आज जमाना अपने दिल में ये ना सोचे कि मेरे आका को रिश्ता नहीं मिल रहा था, बल्कि रिश्ते तो ऐसे आए थे कि मेरे आका अगर चाहते तो बहुत बड़े करोड़पति के साथ में भी रिश्ता कर सकते थे, लेकिन नहीं। हुजूर खातूने जन्नत के रिश्ते के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के मर्जी का इंतजार कर रहे थे। का वाकया है, बोलो सुभान अल्लाह। का वाकया है, मस्जिद नबवी में तमाम सहाबे कराम बैठे हुए हैं, तमाम सहाबा बैठे हैं। उन सहाबा के बीच में शादी की बात चल जाती है। एक सहाबी बोल पड़े कि मैं खातूने जन्नत का रिश्ता लेकर नबी की बारगाह में गया था, लेकिन मेरे आका ने कोई जवाब न दिया। तब तक दूसरे सहाबी बोल पड़े कि मैं नबी का रिश्ता लेकर के नबी की बारगाह में गया था, फातिमा का रिश्ता लेकर नबी की बारगाह में गया था, लेकिन मेरे आका ने कोई जवाब न दिया। तब तक तीसरे बोल पड़े, तब तक चौथे सहाबा बोल पड़ते कि मैं नबी की बारगाह में गया था खातूने जन्नत का हाथ मांगने के लिए। हजरात, तब तक चौथे बोल पड़े। यहाँ तक उसमें जितने बैठे हुए थे हजरात, ज्यादा से ज्यादा लोग नबी की बारगाह में रिश्ता लेकर जा चुके थे, लेकिन मेरे आका ने हाँ ना और ना में जवाब नहीं दिया था। जब मेरे दोस्तों तमाम सहाबा ने बात मिलाई तो उसमें हजरत मौलाए कायनात भी मौजूद थे। तमाम सहाबा ने राय दिया कि ए अली, तुम रिश्ता लेकर जाओ, हो सकता है मेरे आका आपके बात को मंजूर कर ले, आपके रिश्ते को मंजूर कर ले। इतना कहना था कि हजरत अली ज़ारो कतार रोने लगे, हजरत अली की आंखें बरसने लगी। तमाम सहाबा ने पूछा, अली क्या मामला है? कहा है मेरे साथियों, तुम लोग राय तो अच्छा दे रहे हो, प्लान तो अच्छा सोच रहे हो, लेकिन मैंने कभी दुनिया से प्यार नहीं किया है, मैंने कभी दौलत से प्यार नहीं किया है, मेरे पास दौलत नहीं है। अगर मेरे आका ने रिश्ते को मंजूर कर लिया तो मैं फातिमा का महर कैसे अदा करूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात ने कहा कि मेरे साथियों, प्लान तो बड़ा अच्छा सोच रहे हो, हमें राय तो अच्छा दे रहे हो। अगर मेरे आका ने रिश्ता मंजूर कर लिया, अगर मेरे नबी ने रिश्ते को मंजूर कर लिया तो मैं दुनिया के दौलत से कभी प्यार नहीं किया है। हाँ, अगर दुनिया में मैंने प्यार किया है तो सिर्फ मेरा घोड़ा है जिसे दुलदुल कहा जाता है, मैंने उससे प्यार किया है। एक मेरी तलवार है जिसे जुल्फिकार कहा जाता है, मैंने उससे प्यार किया है। जब कभी काफिरों के नरगे में जब इस्लाम फंस जाता है तो मैं उस घोड़े पर सवार होता हूँ और जुल्फिकार अली के हाथ में होती है और इस्लाम के खातिर काफिरों का खातिमा करता हूँ। हजरत अली ज़ारो कतार रो रहे हैं, तमाम साथी सोच रहे हैं कि अली पैगाम लेकर नबी की बारगाह में जाए। तमाम साथियों ने कहा कि ए अली, अगर नबी ने रिश्ते को मंजूर कर लिया तो हम सब मिलकर के तुम्हारी मदद करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन आज हमारा आपका क्या नजरिया है? हमारे बगल में अगर किसी बच्ची की शादी है तो आज हमारे दिल में खटकने लगता है कि अगर किसी तरह से बेइज्जती हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, अगर एक प्लेट कम पड़ जाता तो बड़ा अच्छा होता, अगर एक प्लेट खाना कम पड़ जाता तो अच्छा होता। अरे दोस्तों, क्या हमारे असलाफ का तरीका यही है कि हमारे बगल में शादी है, हमारे दिल में खटक रहा है कि अगर बेइज्जती हो जाती तो बड़ा अच्छा होता? दोस्तों, सहाबा का तरीका ये नहीं है, बल्कि असलाफ का तरीका तो ये है कि तमाम साथी कह रहे हैं अली रिश्ता लेकर जाओ, अगर नबी ने मंजूर कर लिया तो हम सब मिलकर क्या कह रहे सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नसीहत ये मिली
कि अगर हमारे बीच में अगर किसी की बच्ची की शादी है, हम अगर ज्यादा नहीं मदद कर सकते हैं तो कम से कम सुबह उठ करके और जाकर उसके पास खड़े हो जाएं और कहें कि भाई हमारे लायक भी कोई काम है। उससे आप पूछ तो सकते हैं, अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते, अगर मालो जर से मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम हाथ में हाथ तो बटा सकते हैं। आप उससे पूछें कि भाई हमारे लायक भी कोई काम हो तो हम भी उस काम का अंजाम दें। हजरात अगर आपने इतना पूछ लिया तो समझो उसका दिल बढ़ गया। ऐ मेरे दोस्तों, सहाबा ने कहा अली रिश्ता लेकर जाओ, अगर नबी ने मंजूर कर लिया हम सब मिलकर मदद करेंगे। इधर हजरत अली अपने साथियों के बीच से निकलते हैं और उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिदरा बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमी को हुक्म फरमाया कि ए जिब्रील जल्दी परवाज करो और जाकर मेरे नबी की बारगाह में पहुंचकर मेरा पैगाम सुना दो, मेरा सलाम पेश करो और जाकर मेरे महबूब से कह दो कि अगर फातिमा की शादी होगी तो अली बिन अबू तालिब के साथ में होगी। बेशक, क्या कहते हैं, बहुत खूब, सुभान अल्लाह है। बेशक अगर फातिमा का रिश्ता होगा तो अली बिन अबू तालिब के साथ में होगा। हजरत इधर हजरत अली अपने साथियों के बीच से निकलते हैं और उधर हजरत जिब्रील अमी है, ताइरे सिदरा बुलबुले सिदरा है। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अमी नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है और खुदा का पैगाम है मेरे आका कि अगर फातिमा का रिश्ता होगा तो अली बिन अबू तालिब के साथ में होगा। इधर हजरत जिब्रील अमी प्रवास करते हैं और दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। मेरे दोस्तों, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मेरे आका ने पूछा कौन? कहा अली बिन अबू तालिब। मेरे आका ने दरवाजा खोल दिया। हजरत अली अंदर कदम रखते हैं। मेरे आका ने अपने हाथों को फैला दिया और कहा अहलन व सहलन मरहबा, ऐ अली मेरे करीब आ जाओ, ऐ अली मेरे करीब आ जाओ। हजरत अली करीब आते गए, मेरे आका ने सीने से लगा लिया और कहा कि अली कैसे आना हुआ। हजरत अली ज़ारों कतार होने लगे, हजरत अली का पैर लड़खड़ाने लगा। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं नहीं आ रहा था मेरे आका, बल्कि साथियों ने भेज दिया है। हजरत अली से मेरे आका मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं कि ए अली, जिस रिश्ते को लेकर के तुम आए हो, जिस रिश्ते के लिए तुम आए हो, ये मंजूरी रब की तरफ से आ चुका है, ये मंजूरी खुदा की तरफ से आ चुकी है। लेकिन अली ये बताओ कि रिश्ता तो हमें मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा का महर कैसे अदा करोगे? इतना सुनना था कि हजरत मौलाए कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया में दौलत से तो प्यार नहीं किया है, लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो अली महर के लिए अपने तलवार और दुलदुल को बेच देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घोड़े और तलवार को मैं बेच देता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने अपने घोड़े और तलवार को हजरत उस्मान गनी के हाथों फरोख्त कर दिया। सुभान अल्लाह। और हजरत उस्मान गनी ने इतने महंगे कीमत में खरीद लिया कि हजरत अली का रिश्ता भी हो गया और वलीमे का खाना भी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। इस कदर सहाबा एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन आज हमारा आपका नजरिया क्या है? आज हमारा आपका किरदार क्या है? हम किस तरह से अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं? ऐ दोस्तों, हम मदद करें। आज हम किसी का मजाक न बनाएं। अगर तुम दूसरे का मजाक बनाओगे तो याद रखो दोस्तों, एक दिन तुम भी मजाक बन के रह जाओगे। आज हमारे आपके अंदर जो बुराइयां हैं दोस्तों, वाकई में अगर हमने इस बात पर अमल किया और अपने असलाफ के तौर तरीका पर चलकर जिंदगी को बसर करने की कोशिश किया तो इंशाअल्लाह अजीज हर मैदान में तुम कामयाब होते हुए नजर आओगे। हजरात, आज जो देखा जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आ रही हैं, तमाम जेवर गहने पहन करके आ रही हैं। हजरात, मेरी माँ बहनें भी गौर से सुन लें, अपने ऊपर फख्र न करें, बल्कि अपने गरीब शौहर को आप ताना न दें। मैंने किताबों में पढ़ा है कि औरत की इज्जत काबे से भी ज्यादा बुलंद है। औरत की इज्जत काबे से भी ज्यादा बुलंद है। जो औरत जितनी इज्जतदार है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत दुनिया के अंदर रहकर अपने शौहर के साथ वफादारी करे, अपने गरीब शौहर के कम कमाई पर खुश रहे और उसे ताना न दे, मैके जाने पर शुकुको शाबाद की फजाइल ना पैदा करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गरीब शौहर के कम कमाई पर खुश रहे तो अल्लाह के रसूल फरमाते अगर उसका शौहर उससे राजी है तो बिला हिसाबो किताब वो औरत मेरी बेटी फातिमा के साथ जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और वो औरतें कान खोल कर सुन ले जो अपने गरीब शौहर के कम कमाई पर ताने देती है, बाजार मेले जाने पर शुकूक व शाबाब की फजाइल पैदा करती है और अपने शौहर के साथ गद्दारी करती है, वफादारी से पेश नहीं आती। याद सुन लो कि अगर तुम्हारा शौहर अगर तुमसे राजी नहीं है, लाख रोजे रख लो, लाख नमाजें पढ़ लो, लाख हज और ज़कात कर लो, यहाँ नहीं सर रगड़ कर फोड़ कर मर जाओगी, लेकिन तुम्हारा शौहर अगर तुमसे राजी नहीं है तो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती, जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती। आज हम शिकायत करते हैं, हजरत मेरी बच्ची को भी 6 महीने शादी को हुआ है, लेकिन उसका शौहर उसको मानता जानता नहीं है। एक बात में बड़ी जिम्मेदारी किसी के साथ कह करके जा रहा हूँ कि हम अपनी बहन बेटियों का घर खुद अपने हाथ से उजाड़ देते हैं। आप कहेंगे हजरत कैसे? 200 रुपये का आप मुर्गा लेकर के आए और बहन के घर पहुंच गए मोटरसाइकिल से, और अगर गलती से शौहर ने कह दिया कि आज नहीं भेजेंगे तो अब जो कुछ भी हो जाए बच्ची को लेकर के आना है। ये हमारा तौर तरीका है नहीं? है ऐसा कि नहीं? यानी 200 रुपये का मुर्गा जो मियां बीबी के बीच में मोहब्बत रब ने पैदा किया है, उस मोहब्बत को तुम कत्ल करके आ रहे हो, उस मोहब्बत पर तुम तलवार चला करके आ रहे हो। हजरात सुन लो गौर से, अगर शौहर इजाजत नहीं दे रहा है तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप जबरदस्ती उसे लेकर के आए। हजरात उस शौहर के इजाजत से लेकर आए। आप जिस दिन आप जबरदस्ती उसे बिठा कर लाएंगे, शौहर के बगैर इजाजत के लेके आएंगे, जो दिली मोहब्बत दिली तरफ होती है जो खुदा पैदा करता है, उसको आप तोड़ कर चले आते हैं। और 2-4 मर्तबा ऐसा करने से जो दिली लगाव होता है, दिली मोहब्बत होती है, वो खत्म हो जाती है। फिर आप दौड़ते हैं, हजरत ताबीज दे दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। अरे जो ताबीज पहले से था उसे तो तुमने तोड़ कर फेंक दिया, अब क्या ताबीज खास बनवा रहे हो? अरे लाखों ताबीज बनवाई जाए, जो अल्लाह ने मोहब्बत पैदा किया था वो ताबीज फिर से मोहब्बत नहीं पैदा कर सकती। क्योंकि दोस्तों आप किसी चीज को तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद आप कितना भी जोड़ेंगे लेकिन उस जैसा नहीं हो सकता। हजरात पता चला कि हम जब शादी करके बच्चियों को रुखसत कर दें हजरात, तो उसके शौहर के मुताबिक हम उसको लेकर के आए और फिर भेजा भी करें। लेकिन नौजवान भी एक चीज कान खोल कर सुन लें, हमारे नौजवान भाई तो इतना खुश होंगे कि हजरत जब से बैठे हैं सिर्फ औरतों को नीचा दिखा रहे हैं। हम लोगों का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, हम लोग तो अब बहुत आला किस्म के हैं। हमारा जो खिदमत नहीं करेगा, अगर हमारी खिदमत नहीं करेगी तो वो जहन्नम में चली जाएगी और हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे। और नौजवान भी कान खोल कर सुन लें, आज तुम अपने औरतों को माँ बुआ की गाली देते हो। अगर औरत 50 रुपये मांग ले तो तुम्हारा कलेजा फट जाता है। मौलाना साहब अगर चौराहे पर मिल जाए, हजरत अस्सलाम वालेकुम, आइए चाय पी लीजिए, क्यों हमें आप चाय पिला रहे हैं? क्या मैं चाय नहीं पी सकता? हजरात मैं नहीं कहता कि आलिमों से मोहब्बत न करो, करो, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी ने 50 रुपये अगर मांगा है तो उसी भी दे करके आओ। हजरात अगर वही दोस्तों में और वही एक दूसरे में तुम 100 रुपया जाकर होटलों पर उड़ा देते हो, उसी में से अगर 50 रुपया घर पर दे देते तो तुम्हारी मोहब्बत कायम रहती, तुम्हारे बच्चे भी खुश रहते, बीवी भी खुश रहती। लेकिन आज हम इतना आवारा हो चुके हैं, हमारे नौजवान अपने औरत अगर कुछ भी कह दे उसे तो कोठरी के अंदर कैद करके रखते हैं और अपना सोचते हैं कि हम आवारा सांड की तरह से घूमते रहें, हमें कोई कुछ न कहे। याद रखो कि जितना तुम्हारा हक औरत के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे ऊपर उसका भी हक है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर ऐसी बात आ जाए तो बगैर इजाजत आप छत पे बगैर इजाजत के औरत के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इतना हक औरत रखती है। आप क्या समझते हैं कि बस हम ऐसे ताने सुनाते रहे, बस हम ऐसे घूमते रहे, बस औरत हमारी खिदमत करती रहेगी? अरे औरत से अगर तुम्हें खिदमत कराना है, कौन औरत है जो अपने शौहर को नहीं चाहती है? हर औरत अपने शौहर से मोहब्बत करती है, लेकिन वो शौहर इतना नाकारा होता है कि खुद ब खुद अपने औरत को इतने हद तक पहुंचा देता है कि वो औरत दूसरे के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाती है। अपने बच्चों पर पैसे को खर्च करना, अपने बीवी
बच्चों पर पैसों को खर्च करना भी एक सदका है, बेशक एक सदका है। आप ये ना समझें कि हम अपने औरत को या अपने बच्चों पर पैसे को खर्च कर रहे हैं तो नाजायज जा रहा है, नाजायज नहीं है, बल्कि वो भी सदका बताया गया है। हजरत एक आखिरी बात मैं बोल करके रुखसत होता हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। हजरत ने बताया है कि प्रोग्राम थोड़ा जल्दी में बढ़ाइए। हजरत एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें, मैं खास करके ये बात अपने माँ बहनों को बताता हूँ, आज जो जेवर गहने और कपड़ों पर नाज करने वाली औरतें होती है ना, उनके बारे में मैं बात बता करके रुखसत होता हूँ। एक मर्तबा एक यहूदिया औरत पहुंचती है किसके पास, हुजूर खातून जन्नत की बारगाह में, और कहती है कि ए हसनैन की माँ, ए हसनैन की माँ, हमारे शादी में आप भी तशरीफ लाएं, हमारे शादी में आप भी तशरीफ लाएं। हुजूर खातून जन्नत ने कहा कि अगर बुलाना है तो अली से पूछ लो। आज अगर हमारे घर की औरतें होती, जाओ जाओ बहनी हम आ जाएंगी, क्या कहेंगी, जाइए जाइए मैं आ जाऊंगी, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हमारे बहन बेटियों का ये तरीका होता है। हुजूर खातून जन्नत ने कहा अगर शादी में बुलाना है तो पहले अली से पूछो। सुभान अल्लाह। जब हजरत अली की बारगाह में लोग पहुंचे तो हजरत मौलाए कायनात ने कहा अगर फातिमा को बुलाना है तो नबी की बारगाह में चली जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में चली जाओ। तमाम यहूदी औरतें मन्नत समाजन लेकर मेरे आका की बारगाह में पहुंची और कहती या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है मेरे आका कि हुजूर खातून जन्नत मेरी शादी में आए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ठीक है जाओ, फातिमा आ जाएगी। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत आ जाएंगी। हजरात अब वो दिन आ गया, शादी का दिन आ गया। हुजूर खातून जन्नत के पास जेवर भी मौजूद नहीं है, नए कपड़े भी मौजूद नहीं है, शादी में भी जाना है। हुजूर खातून जन्नत अब्बा हुजूर की बारगाह में पहुंची और कहती है अब्बा जान मुझे शादी में भी जाना है, नए कपड़े भी मौजूद नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा उसी 17 पेवंद वाली कपड़े में तुम्हें जाना है, अल्लाह अकबर, उसी 17 पेवंद वाले कपड़े में तुम्हें जाना है। हुजूर खातून जन्नत ने अब्बा जान के बात पर अमल किया और वही 17 पेवंद वाले चद्दर को फोड़ा हुजूर खातून जन्नत ने और यहूदी के शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। आगे आगे हजरत हसन चल रहे हैं, पीछे पीछे हजरत खातून जन्नत है, उनके पीछे हजरत इमाम हुसैन है। अब खातून जन्नत पहुंचती है उस यहूदिया औरत के शादी में। हजरात आवाज आती है उठो उठो और रास्ता हमवार कर दो, नबी की शहजादी आ रही है। हजरात तमाम औरतें ताज़ीम में खड़ी हो जाती हैं और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ताज़ीम के साथ बिठाया जाता है। एक कमरे में बिठाया गया, तमाम यहूदिया औरतें तैयार होकर के आती हैं कि अब हम अच्छे अच्छे जेवर पहने हैं, खूब अच्छे कपड़े पहन करके आई हैं, अब हम सब मिल करके फातिमा का मजाक बनाएंगी। अल्लाहु अकबर। हुजूर खातून जन्नत के मजाक बनाने के लिए तमाम औरतें इकट्ठा होती हैं कि हम पूछेंगी कि ए खातून जन्नत, ए नबी की शहजादी, तुम्हारे अब्बू जान तो तमाम अंबियाए कराम के इमाम हैं और पूरी दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया का रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, तो फिर ये 17 पेवंद वाला चद्दर ओढ़ कर क्यों आई हो। तमाम औरतें सोचने लगी, तब तक अल्लाह की कुदरत नमूदार होती है। हजरात हुजूर खातून जन्नत ने जो कपड़ा पहन रखा था, 17 पेवंद वाला चद्दर ओढ़ रखा था, हजरात उसमें एक अजीबो गरीब कैफियत तारी होती है कि उस कपड़े से एक नूर निकलना शुरू होता है, कपड़े से चमकार पैदा होना शुरू होता है। तमाम औरतें परेशान है। जिस कमरे में हुजूर खातून जन्नत बैठी हुई है वो कमरा गुले गुलजार हो जाता है, पूरा कमरा महकने लगा। हुजूर खातून जन्नत के कपड़े से चमकार निकलना शुरू हो गया। तमाम यहूदिया औरतें परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि ए फातिमा, ये बताओ कपड़े कहां से लेकर आई हो, ये कपड़े किस मार्केट से लेकर आई हो, कपड़े किस बाजार से लेकर के आई हो। हुजूर खातून जन्नत ने कहा कि हम कपड़े बाजार से नहीं लाए हैं, हम कपड़े किसी मार्केट से नहीं लाई हैं। कहा फिर कहां से लेकर आई हो। कहा कि ये कपड़ा मेरे अब्बू जान के घर से आया है। सुभान अल्लाह। क्या कहा, ये कपड़ा मेरे अब्बू जान के घर से आया है। कहा तुम्हारे अब्बा ने किस मार्केट में खरीदा है, तुम्हारे अब्बू ने किस बाजार में खरीदा है। हुजूर खातून जन्नत ने कहा मेरे अब्बू जान ने बाजार में नहीं खरीदा है, बल्कि उनको जिब्रील अमीन ने दिया है। कहा जिब्रील कहां से लेकर आए हैं। हुजूर खातून जन्नत ने कहा कि ए यहूदियों तो सुन लो, अरे जिब्रील इस कपड़े को जन्नत से लेकर आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे
रिसालत सुभान अल्लाह सुभान इस अल्लाह कपड़े को जन्नत से लेकर के आए सुभान अल्लाह। इतना सुन्ना था, तमाम यहूदिया औरतें कलमा पढ़कर मुशर्रफ भाई सलाम हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम जेवर और कपड़े को तरजीह न दो, बल्कि ये अपने रब का शुक्र अदा करो कि हे मौला, मैं सुबह से शाम तक भूखी तो नहीं रहती हूँ। 17 पेबंद वाला कपड़ा हुजूर खातून जन्नत ने पहना है। हजरात, उनकी तुम कनीज हो, तुम हुजूर फातिमा तो नहीं हो सकती, हुजूर खातून जन्नत तो नहीं बन सकती, लेकिन उनकी कनीज बनकर अपनी जिंदगी को बसर कर सकती हो।